हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बिंदास और फैंटास्टिक होंगे। तो आज का जो हमारा डिस्कशन है दैट डिस्कशन इज रिलेटेड टू क्लास 9 सीबीएसई बोर्ड चैप्टर 1 रियल नंबर्स। आज इस चैप्टर के बारे में हम ना ही पढ़ेंगे बल्कि हम इसका रिवीजन करने वाले हैं। सो ये वीडियो रिवीजन पर्पज से बनाया गया है। तो अगर आप किसी भी स्कूल में हैं जिसमें आपकी पीरियोडिक टेस्ट होने वाली है, यूनिट टेस्ट होने वाली है, क्लास टेस्ट होने वाली है, तो चैप्टर 1 की ज़रूर होगी। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और सारे कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से पढ़ने के बाद एग्ज़ाम में आंख बंद करके बैठ जाएं। आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम बिना सोचे समझे आप खुद बना लोगे। सोचना तो पड़ेगा, मैं बोल रहा हूं पर सोचना तो पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टुडे आवर टॉपिक इज सीबीएसई क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम बाय मी। ओके, एंड दिस इज full revision of chapter 1. So let's start. So first of all we are going to start the content related to chapter 1. So what are the contents that we have? The chapter name is real numbers and the first content that you have is review of representation of natural numbers, integers and rational numbers on the number line. So first of all we will understand that how can we represent these things on number line. The second point that we have is rational numbers as recurring terminating decimals operation on real numbers. This is also given in the previous video in terms of rational numbers when we have discussed about the properties of rational numbers. But यहाँ भी हम लोग इसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे। Okay, point number 3 is examples of non-recurring or non-terminating decimals. Existence of non-rational numbers, irrational numbers. We will understand about the existence of irrational numbers कि ये irrational number कैसे कहाँ से आता है, such as and their representation on the number line. This is the very important topic for class 9th students, that how could you represent irrational numbers on the number line. Okay, so the next point 4 is explaining that every real number is represented by a unique point on the number line. देखिए नंबर लाइन क्या है, एक बड़ा सा नंबर लाइन है और उस बड़े से नंबर लाइन पे इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं और हर एक पॉइंट किसी एक पर्टिकुलर नंबर को ही रिप्रेजेंट करता है. सो देयर इज अ यूनिकनेस ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स ऑन द नंबर लाइन. The point number 5 that we have is rationalization. This is the very famous topic of class 9th that you have to understand about rationalization with precise meaning of real numbers of the type and their combinations. Combinations of rational and irrational that we have to rationalize. पढ़ेंगे इसको. Where x and y are natural numbers and a and b are integers. इसके बारे में भी अच्छे से डिस्कस करेंगे. So ये जो contents मैं बता रहा हूँ that is content is of class 9 first chapter according to the reduced syllabus of 2024-25 session. तो ये ध्यान रखिएगा. Point number 6 is, आ जाओ भाई जल्दी से, definition of nth root of a real numbers. जहाँ पर आप पढ़ेंगे क्या, recall of laws of exponential with integral power. शॉर्टकट में मैं आपको बता दूं, you have to understand about a very important topic which is known as exponents. You have studied in class 8th जिसका एप्लीकेशन आपको क्लास 9th के भी एक एक्सरसाइज में देखने को मिलेगा. तो समझेंगे what are the different things here. Rational exponents with positive real basis to be done by particular cases allowing learner to arrive at the general. अब हम समझेंगे कि ये टॉपिक्स क्या हैं, कैसे हैं और इसे हम डिटेल में अब पढ़ने वाले हैं. तो चलिए बिना देर किए एक बार समझ लीजिए, पूरा का पूरा देख लीजिए, वीडियो पॉज करके लिख लीजिए. वीडियो पॉज करके लिखने का मन नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा. नेक्स्ट देखते हैं अगला. सो फर्स्ट टॉपिक जो हमारा था वो क्या था, रियल नंबर्स, वेयर वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट review of representation of natural numbers, integers and rational numbers on the number line. तो चलिए भाई फटाफट बिना देर किए हम एक नंबर लाइन बना डालते हैं. तो ये हमारा है नंबर लाइन.
क्या ये हमारा नंबर लाइन है? अब चीज़ों को हम लोग थोड़ा डेप्थ में भी समझते जाएंगे। बच्चों को जब बोला जाता है कि आप नंबर लाइन बनाओ तो बच्चे, कुछ बदमाश बच्चे ऐसे करते हैं, ये लाइन है, ये लाइन नहीं है, ये लाइन सेगमेंट है, बिकॉज इट हैज़ 2 एंड्स, ओके। और लाइन कहता है कि भाई साहब मैं एंडलेस हूँ, मैं दोनों तरफ एकदम चलता रहता हूँ, चलता रहता हूँ, चलता रहता हूँ, ओके। दैट मीन्स देयर इज नो एंड ऑफ a line. So always keep the arrow both sides, okay, so that it will be said as line. अब लाइन पे आपको क्या करना है? नेचुरल नंबर ये सब सारे रिप्रेजेंट करने हैं। तो सीधा सीधी चलता हूं मैं। नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय n, इंटीजर्स इज डिनोटेड बाय i, रैशनल नंबर्स इज डिनोटेड बाय q। थोड़ा सा डेफिनेशन फटाफट देख लेते हैं। नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। Integer is from minus infinity to plus infinity with the numbers like -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 and so on. And rational numbers which is denoted by q, it is in the form of p by q. और इसके और कुछ क्या क्या भाग होते हैं कि ये जो रैशनल नंबर होता है ये टर्मिनेटिंग होना चाहिए, टर्मिनेटिंग होना चाहिए या फिर रेकरिंग होना चाहिए, है ना। नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग जिसको हम कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। फटाफट हम लोग देखेंगे क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, हमें रिवीजन करना है। तो आप कैसे करेंगे? तो नेचुरल नंबर 1 2 3 हमें रिप्रेजेंट करना है। यू विल टेक अ फर्स्ट पॉइंट एज 0, नेक्स्ट नंबर आप 1 लोगे, नेक्स्ट इज 2, नेक्स्ट इज 3 4 सो ऑन। सो दीज आर द नेचुरल नंबर्स। If you want to represent integers तो आप क्या करोगे? These are already integers. You have to take negative of these counting numbers. So -1, -2, -3, -4 and so on. These are the integers. अगर आपको रैशनल नंबर लेना है तो सबसे पहली बात, ये सारे के सारे रैशनल नंबर ही हैं, बट इफ़ यू वांट सम अदर रैशनल नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ डेसिमल और अदर फॉर्म्स, जैसे आपको मान लो 0.5 दिखाना है तो 0.5 मैं कैसे दिखा सकता हूँ? 0.5 can be is lying between 0 and 1, so it is 0.5 here. If I want to represent 2 by 3 रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ तो 2 by 3 किसके किसके बीच लाई करेगा ये सोचो। सो 2 by 3 विल लाई बिटवीन, 2 by 3 के लिए कैलकुलेट करो, 3 2.06 टाइम्स 3 6 18, देन इट विल बी 2, देन 6 टाइम्स 18। तो ये कैसा नंबर हो गया? ये एक ऐसा नंबर है विच इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग, सो इट इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, ओके। तो इसे रिप्रेजेंट करने के लिए इट इज 0.66666, इट इज लाइंग बिटवीन 0 and 1, 0.6666 किसके बीच में है? 0 और 1 के बीच में है। तो 0 और 1 के बीच में जहां भी होगा हम रिप्रेजेंट कर देंगे। इसका एक मैग्निफिकेशन मेथड होता है जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब आप बात करेंगे अदर पार्ट्स की। So here you have to pause the videos by your own and you have to note it down, right? So we have understood that how can we represent on the number line. The most important fact about this topic is to represent the line. Line ही आप नहीं बनाते हो, बच्चे लाइन नहीं बनाते हैं। बच्चे क्या बनाते हैं? लाइन सेगमेंट बना देते हैं, या बच्चे एरो बना देते हैं, है ना, एरो विच इज नोन एज अ रे, है ना। तो ना ही आपको रे बनाना है, ना ही आपको लाइन सेगमेंट बनाना है। आपको क्या बनाना है? आपको लाइन बनाना है। एंड लाइन, द डेफिनेशन ऑफ लाइन इज इट डज नॉट हैव एनी एंड, राइट। सो लाइन बनाना है, यू हैव टू रिप्रेजेंट द नंबर्स हियर। I think this portion is clear to everyone. Now moving to the next topic. The next topic is rational numbers as recurring or terminating decimals and operations on real numbers. तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ये terminating, recurring और terminating के बारे में क्या कहा जा रहा है, लेखक क्या कहना चाहता है, हम इस बारे में समझेंगे, है ना। लेखक हम सब हुए, आप भी लेखक हैं, मैं भी लेखक हूँ, सब के सब लेखक ही हैं यहाँ पर। तो देखिए समझेंगे हम लोग पहले। रैशनल नंबर is categorized into two parts. The first part is known as terminating number, terminating rational number, और दूसरा क्या होता है?
दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग recurring rational number. Okay, we will understand with the help of some examples here. Terminating rational number, जैसे आप ले लो एक एग्जाम्पल 1/2, इसे सॉल्व करोगे तो you will get 0.5. If you will solve 1/4 then you will get 0.25. ठीक है, तो ये सारे क्या हैं 0.5, 0.25, ये जो नंबर्स हुए है ना, ये जो नंबर्स हुए ये क्या होते हैं, किसी डेसिमल के बाद यहाँ पर एक एंड पॉइंट आ जाता है। टर्मिनेटिंग का मतलब ये होता है कि जब आप उसे डिवाइड करोगे, देखो डिवाइड कर रहा हूँ मैं, जब आप उसे डिवाइड करोगे तो 5 × 10, डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ जाए। टर्मिनेटिंग का मतलब सिर्फ डेसिमल से मतलब नहीं है, टर्मिनेटिंग का मतलब ये है कि उसे डिवाइड करने पर उसकी रिमाइंडर 0 आ जानी चाहिए, तभी वो टर्मिनेटिंग कहलाएगा। अब एक ऐसा नंबर लेते हैं जो टर्मिनेट नहीं हो रहा है लेकिन उसमें एक खास तरह की बातें आ रही हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूँ 1/3, 1/3 को डिवाइड करते हैं, है ना। लेट्स चूज वाइट कलर, यहाँ पे मैं बीच में कर रहा हूँ, 3 इज हेयर 1 इज हेयर, पॉइंट लिया 0 बैठाया, 3 × 9 1, फिर इस पॉइंट के कारण एक 0 आया 3 9 1, फिर 3 आएगा 0 9 1। तो ये क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं कि ये 1 1 रिपीट हो रहा है और यहाँ पे 3 3 3 3 भी रिपीट हो रहा है, राइट। तो जब नंबर्स आपस में रिपीट हो रहे हों तो वैसे केसेस में दिस 1/3 कैन बी रिटन एज 0.333 ... ये जो रिपीट हो रही है आप इसे कब तक लिखोगे, आप इसे तब तक लिखोगे जब तक आपके शरीर में जान है, उसके बाद नहीं लिख पाओगे, है ना, उसके बाद कोई और लिखेगा। तो 0.333 नहीं लिख करके आप क्या लिखोगे 0.3 बार। भाई हमको जान नहीं देना है ना, हमें जान बचाना है, आगे काम करना है, देश की सेवा करनी है। तो देश की सेवा करनी है तो 3 में दिमाग मत लगाइए, 3 जीवन के अंत तक मत लिखिए, यहीं पर एक ऐसे सिंबल दीजिए, शांत हो जाइए। दैट मीन्स 0.3 बार ये कैसा नंबर है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ इट इज रिपीटिंग ऑल्सो, सो रिपीटिंग नंबर इज ऑल्सो नोन एज रेकरिंग नंबर। ठीक है, तो आई थिंक दिस पार्ट इज ओके। सो इस तरह के नंबर्स जो भी होते हैं जहाँ पे डेसिमल के बाद डिजिट्स रिपीट होना शुरू होती हैं, वैसे नंबर्स को भी हम रैशनल नंबर कहते हैं। Okay, so this is all about recurring and terminating decimals. I think this part is clear to everyone that rational number is divided into 2 parts, or rational number is categorized into 2 parts. One is terminating and another is non-terminating recurring. ओके, टर्मिनेटिंग क्या होता है, जब आप p/q वाले नंबर्स को डिवाइजर और डिविडेंड को डिवाइड करोगे देन रिमाइंडर किसी ना किसी पोजीशन पर आकर के रिमाइंडर 0 हो जाएगी। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होती है कि वो कभी भी रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा लेकिन कोशेंट जो है वो रिपीट होता जाएगा, सो दैट इज नोन एज नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट पॉइंट नंबर 2. Note it down and then we will proceed. Now we are going to discuss about point number 3, examples of non-recurring, non-terminating decimals. कुछ examples समझेंगे जिससे हमें ये पता चले कि ये non-recurring क्या होता है। तो जैसे √2 की वैल्यू आप ले लो, वैल्यू ऑफ √2 इज 1.4142135624, इसके और आगे भी वैल्यूज होते हैं। क्यों? क्योंकि आपको उसको डिवीजन मेथड से देखना है तो कुछ ना कुछ वैल्यूज़ आएंगे ही और वो आते ही रहेंगे, वो कभी खत्म होने वाली नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इस √2 में क्या देखते हो, क्या ऑब्जर्वेशन है आपकी, क्या डेसिमल के बाद ऐसा कोई नंबर है जो रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्या अगर ऐसा आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जब आप डिवाइड कर रहे होंगे तो रिमाइंडर 0 नहीं आ रही होगी, तभी ये आपके क्वेश्चंस में ये वैल्यूज़ आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये ना ही रिपीट हो रहा है ना ही टर्मिनेट हो रहा है। तो ऐसे नंबर्स जो ना ही टर्मिनेट होते हैं और ना ही रिपीट होते हैं तो वैसे नंबर्स को हम इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं, राइट। उसी तरीके से √3 की वैल्यू क्या है 1.7320508076।
आता ही रहेगा। ओके, तो हम यहाँ पे हमने अब ज़्यादा नहीं लिया है, नहीं तो फिर वही जब तक है जान वाली कॉन्सेप्ट लग जाएगी और हमें जान नहीं देना है, हमें देश की सेवा करनी है। तो देश की सेवा के लिए आप इतना नंबर लिख करके भी काम चला सकते हैं, नहीं काम तो नहीं चला सकते हैं लेकिन चलाना पड़ेगा अभी थोड़ी देर के लिए। तो √3 की वैल्यू ये हो गई। ओके, अब क्या होता है कि मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम लोग √2 की वैल्यू ले लेते हैं 1.414, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि दिस इज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ √2। ओके, मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए, कैलकुलेट करके एक डेफिनेट आंसर तक पहुंचने के लिए हम ऐसे वैल्यूज कंसीडर करते हैं। उसी तरीके से √3 की वैल्यू हम लेते हैं 1.732। ठीक है, आई थिंक मीनिंग इज क्लियर टू एवरीवन। उसी तरीके से देखिए, तो ये क्या हो गया, ये नॉन रेकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। दिस इज अ काइंड ऑफ नॉन रेकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। अब आप खुद से भी एक एग्जांपल सेट कर सकते हो कि भाई मुझे ये सब दिमाग पछड़े में नहीं पड़ना है, मैं तो अपने से एक नंबर बनाऊंगा। नंबर में बनाऊंगा 2.05 005 0005 00005, है ना। इसी तरीके से मैं एक नंबर बनाऊंगा। तो ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, है ना। आपको मन है कि आप नहीं, आपको ऐसे मन कर रहा है, आप इसमें 10.01 काउंटिंग नंबर लिखना चाहते हैं, लिखिए 7 8 9 10 11 12 लिखते जाइए, जब तक जान है लिखते जाइए, है ना। तो ये भी क्या होगा, दिस इज ऑल्सो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग एंड हेंस इट इज अ इर्रेशनल नंबर। अब हमें यह समझना है कि जो प्री डिफाइंड इर्रेशनल नंबर्स हैं लाइक √2 √3 √5 √7, इन सारे नंबर्स को आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करें। ओके, दीज आर नॉट आर पार्ट ऑफ द सिलेबस टू रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। सो सिलेबस के अंदर में रह के काम करना है। सो वी विल डिस्कस अबाउट दिस वन एंड दिस वन, जिसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट याद करना होगा and that concept name is पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम को समझेंगे, याद करिए कि पाइथागोरस थ्योरम क्या था और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आइए अब हम सीखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। सपोज दैट ट्रायंगल ABC is a right angle triangle where angle B is 90 degree. Since we know that the opposite side of right angle is hypotenuse, so the opposite side of this right angle is hypotenuse, which is AC. Okay, and the line which is perpendicular to the horizontal line is known as perpendicular and the horizontal line is known as base. Up to class 9th यही डेफिनेशन चलता आया है। जब आप क्लास 10th में जाओगे, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ोगे, तो रेफरेंस एंगल के फॉर्म में परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस के बारे में समझोगे, बट अभी के लिए काफ़ी है। According to Pythagoras theorem, hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. ठीक है, so if we are going to solve about h only, so h is equal to √p square plus b square. अब इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल यहाँ क्यों कहा जा रहा है, इसको समझते हैं। मान लीजिए कि मुझे एक वैल्यू रिप्रेजेंट करना है जो कि √2 है, मुझे √2 रिप्रेजेंट करना है, तो क्या मैं √2 क्रिएट कर सकता हूँ? क्या मेरे में कैलिबर है कि किसी नंबर को, किसी नंबर के हेल्प से, किसी लाइन के हेल्प से मैं √2 क्रिएट कर दूँ? तो वही चीज़ हम अब सीखेंगे। मान लीजिए कि बेस की वैल्यू 1 है, 1 यूनिट हमने ले लिया, और परपेंडिकुलर की वैल्यू भी 1 है, दैट इज़ ऑल्सो 1 यूनिट। तो अगर मैं सोचूं कि हाइपोटेनस की वैल्यू क्या होगी, तो क्या हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर लिख करके रूट दे दें, क्योंकि p इज इक्वल टू 1 यूनिट एंड b इज ऑल्सो 1 यूनिट एंड देयरफॉर इट विल बी 1 + 1 स्क्वायर रूट एंड देयरफॉर इट इज √2। कहने का मतलब ये है कि ये जो लेंथ है, दैट लेंथ कुड बी टेकन एज √2 यूनिट्स। ये लेंथ क्या हो जाएगा, √2 यूनिट्स होगा। और अब इसी के हेल्प से हम आगे के क्वेश्चन में समझेंगे कि आप किस प्रकार से इस कॉन्सेप्ट के जरिए √2 और √3 √5 √7 जैसे इर्रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए समझते हैं। सो बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, लेट्स पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।
We are going to study about the concept of Pythagoras theorem in terms of representation of irrational numbers on the number line. आप यहाँ देख सकते हैं we have drawn two lines here, okay, एक line है और एक ray है. हमें करना ये है कि we have to take some measurements here और उस measurement की help से हम बनाएंगे we will represent √2 on the number line. तो आपको करना ये है कि suppose that we have taken 0 mark here and 1 unit of distance from one point to another point. अब उस पे आपको क्या करना है कि यूजिंग कॉम्पास यू हैव टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन. सो फॉर परपेंडिकुलर यू विल ड्रॉ अ सेमी सर्कल, देन आफ्टर दिस यू विल मेक 60, देन 120 एंड देन देयर विल बी कट हेयर, इट विल फ्रेम 90 डिग्री. ठीक है, ये 90 डिग्री बना लिया. ये 90 डिग्री बनाने के बाद आप इस पर 1 यूनिट का फिर से एक कट लगाओगे. सो यू विल टेक 1 यूनिट फ्रॉम द कंपास एंड देन यू विल मेक अ कट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दैट पॉइंट. सपोज दैट आपने कट यहाँ पे लगा दिया. यू विल टेक दिस पॉइंट एज पॉइंट बी. इस पॉइंट का नाम ने आपने O ले लिया है और ये B ले लिया है. सपोज दैट ये पॉइंट A ले लिया है आपने. ठीक है, अब आपको करना क्या है कि अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम यू नो दैट यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वैल्यू क्या होने वाली है, ये आप जान चुके हो. तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू होगी √2 यूनिट, बिकॉज OA, द लेंथ ऑफ OA इज इक्वल टू 1 यूनिट, AB इज ऑल्सो 1 यूनिट. सो द अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम OB की वैल्यू हो जाएगी √OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, जो इसको हम कह सकते हैं 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू √2. ठीक है, ये √2 रिप्रेजेंट होने के बाद कहने का मतलब OB √2 है. अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि अगर मैंने आपको एक सर्कल बनाने को कहा, सर्कल आपको बनाना है 2 सेंटीमीटर लेंथ का. ठीक है, 2 सेंटीमीटर रेडियस का आपको एक सर्कल बनाना है. आप क्या करेंगे, यू विल टेक 2 सेंटीमीटर फ्रॉम योर कंपास. ओके, एक रेडियस लेंगे, अपने स्केल से मेज़र करेंगे और उसके बाद एक सर्कल ऐसे बना देंगे. अच्छा, जब आपने सर्कल बनाया तो आपने सबसे पहले एक सेंटर फिक्स की, उसके बाद आपने 2 सेंटीमीटर का रेडियस फिक्स किया. तो जब आप अपने रेडियस फिक्स किया तो क्या आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये हर एक लेंथ 2 सेंटीमीटर का है. वी कैन से दैट ईच लेंथ इज ऑफ 2 सेंटीमीटर. उसी तरीके से जब आप कॉम्पास को यहाँ रखते हो, कॉम्पास के नीडल को यहाँ रखते हो, पेंसिल नीडल यहाँ रखते हो एंड यू स्टार्ट रोटेटिंग फ्रॉम हेयर एंड विच विल फॉल ऑन दिस लाइन. सपोज दैट इस लाइन पे यहाँ पर फॉल होता है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो मार्क है ये √2 को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, तो अब हम अगर बात करते हैं प्रोसेस की, ये तो मैं समझा रहा था. प्रोसेस ये है कि सबसे पहले आपको एक लाइन बनाना है, उसमें आपको 0 लेना है, 0 और 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट जो भी आप लेना चाहते हैं, 1 यूनिट होना चाहिए वो. ठीक है, 1 यूनिट का डिस्टेंस लिया, फिर आपने एक इस पर परपेंडिकुलर बनाया, देन अगेन यू हैव टेकन 1 यूनिट. ओके, यू हैव यूज्ड द कंपास एंड ड्रॉन 1 यूनिट ऑफ लेंथ on the perpendicular line. Then you have to join O and B and using the compass you have to make an arc which fall at this line L. Suppose that is line का नाम L है, तो ये लाइन पर ये जाकर के इस लाइन पर फॉल होता है and hence this value is, this mark will represent √2 and hence if its name is suppose that C, तो हम बोलेंगे कि OC is equal to √2 units. Right? I think this is clear to everyone. Understood? This way you can draw √2 on the number line. ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं किसी और क्वेश्चन के बारे में. Now we are going to understand that how can we represent √3 on the number line. तो देखिए, Now we are going to represent √3 on the number line. कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं. सबसे पहली बात फिर से रिवीजन कर लें. √3 के लिए हमें चाहिए परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर √ओवर. राइट, यानी परपेंडिकुलर और बेस की कुछ वैल्यूज हमें चाहिए. चलिए निकालते हैं. पर P और B के लिए चलिए हम देखते हैं
आई एम चूजिंग b इज इक्वल टू √2 एंड p इज इक्वल टू 1, और इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं कि हमारी वैल्यू क्या आती है। तो चलिए सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सब्स्टिट्यूट करने के लिए हम यूजिंग वाइट इंक, रूट ओवर द वैल्यू ऑफ p इज √2 स्क्वायर एंड द वैल्यू ऑफ b इज 1। उल्टा लिख दिया हमने ना, p हमने लिया है 1। सो चलिए आप समझ जाएंगे, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। सो इट विल बी √2 को हमने 2 लिख दिया एंड इट विल बी +1, सो इट विल बी √3। यानी √3 के लिए आपको क्या चाहिए, यू कैन टेक b इक्वल टू √2 और p इज इक्वल टू 1। तो अभी तुरंत आपने क्या सीखा कि आप √2 कैसे बना सकते हैं, √2 बनाना आप सीखा। तो आपको √3 बनाने के लिए सबसे पहले √2 बनाना होगा। तो √2 बनाइए। चलिए फटाफट देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक 0, then it will be taken as a, then we have drawn a 90 degree this side, 60, 120, 90 कट हो गया। then we will take a 1 unit of length named as b, OB को मिलाया, ओके OB को मिलाया और OB मिल गया। then after, इसमें रबर क्यों नहीं देता है जी, बड़ी बदमाश है। Okay, we have drawn OB and then we have drawn √2। अब देखो, it is not necessary to draw √2 by this point, है ना, क्योंकि आपका टारगेट क्या है, आपका टारगेट है √3 निकालना, आपका टारगेट है √3 निकालना। तो √2 रिप्रेजेंट करने की इस तरीके से ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें √2 का बेस चाहिए था। हमने √2 का बेस बना लिया, ये हो गया आपका √2 यूनिट्स। ओके, ये है 1 यूनिट, 1 unit, this is also 1 unit and this is √2 unit। लिख लिया, राइट। अब आपको क्या चाहिए, you want perpendicular equal to 1, तो आप क्या करोगे, you will draw 90 degree again on this line OB। तो उसके लिए क्या करोगे, you will draw the semicircle using this point B, then you will make 60, then 120, then like this you will make 90 and then इसको आप ऐसे बढ़ा दोगे। okay, then what is your requirement, your requirement is to take perpendicular equal to 1 unit। तो फिर आपका 1 unit इतना बड़ा है, इतना बड़ा 1 unit कट करेंगे आप यहाँ पर। तो लेट्स कट हेयर दिस साइड, ठीक है, कट कर दिया एंड देन यू विल ज्वाइन O एंड दिस पॉइंट। इस पॉइंट का नाम हम ले लेते हैं C, ठीक है। थोड़ा हौच पौच हो गया है लेकिन आई थिंक आप समझ ही रहे होंगे। तो हमने इसे ले लिया और फिर हम इसे मिला देते हैं, इसे हमने मिला दिया। अच्छा, जब हमने मिला दिया तो ये वैल्यू कितनी हो गई, ये वैल्यू हो गई √3 यूनिट्स, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपने करना ये है कि यू विल टेक O एज द पॉइंट ऑफ कंपास, C as the point of your pencil and then you have to draw the arc in this way। कौन सा ले लें भाई, पिंक ले लेते हैं। आप ऐसे आर्क बनाओगे बनाओगे बनाओगे, बनाते 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 ये जा करके कहीं गिरेगा। कहाँ गिरेगा, इनिशियल लाइन पर गिरेगा। ओके, एंड दिस पॉइंट विल रिप्रेजेंट √3। ओके, अब इसमें खास ख्याल क्या रखना है, बना देना काफ़ी नहीं है, बना करके आपको ये भी बताना होगा कि आपने कौन कौन से वैल्यूज़ क्या क्या लिए थे। ये ज़रूर लिखें क्योंकि इतने हौच पौच में ना समझ नहीं आता है, ना एग्जामिनर को चेक करने में समझ में आता है, ना बच्चों को बाद में एक्सप्लेन करने में समझ में आता है। तो इसलिए आपको करना ये है कि आपको लिखना है इन द गिवन डायग्राम, इन द गिवन डायग्राम या फिर इन द कंस्ट्रक्टेड डायग्राम, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। यू हैव OA इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है, AB इक्वल टू 1 यूनिट, देन BC, अच्छा BC से पहले OB आया था तो OB लिखो, OB इक्वल टू √2 यूनिट्स, देन BC इक्वल टू 1 यूनिट, देन OC इज इक्वल टू √3 यूनिट्स, ठीक है। फिर क्या हुआ है, OC, ये मान लो कि C ले लिया है, D ले लो यहाँ पे,
ओ डी इक्वल टू √3 यूनिट्स। अगर आप इतना लिख देते हो ना तो कोई ऐसा टीचर नहीं है जो आपको फुल मार्क्स ना दे दे, ठीक है। इफ इट इज रिटन टू राइट द स्टेप्स तो स्टेप्स लिखिए, अगर नहीं बोला है तो इट इज नॉट नेसेसरी टू राइट द स्टेप्स। लेकिन ये लिखना बहुत जरूरी है। ये लिखने से क्या पता चलता है कि हाँ बबुआ सब कुछ अच्छे से लिखा है, बबुआ सब समझ के लिखा है और हमको चेक करने में परेशानी नहीं हो रहा है। इसलिए ये सब लिखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। नोट डाउन। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू रिप्रेजेंट √5 ऑन द नंबर लाइन। √5 रिप्रेजेंट करने के लिए व्हाट वी कैन टेक बेस इज इक्वल टू 2 यूनिट्स एंड परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 1 यूनिट। चूँकि हमें जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम होता है √p² प्लस b²। तो p की वैल्यू क्या है? p की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है। वी हैव टेकन एंड देन इट विल बी 1 प्लस 2 2 4 एंड हेंस इट विल बी √5। तो h की वैल्यू क्या होगी? √5। देखिए जब भी आप रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी इर्रेशनल नंबर ऑफ दिस काइंड √2 √3 √5 तो ये √2 √3 √5 उस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस होता है। दैट मीन्स आप हाइपोटेनस ही क्रिएट करते हो, फिर उसको एक रेडियस बनाते हो और उससे कॉम्पास से आप √5 रिप्रेजेंट कर देते हो। तो आपको यहीं पे वो काम करना है। तो फिर से वही काम करेंगे। वी विल मार्क 0, ठीक है, 1 यूनिट हमने लिया, हियर इट इज 2 यूनिट, ठीक है। नेमिंग करते जाओगे, इट इज नेम्ड एज O, इट इज नेम्ड एज A, राइट। देन इट इज 2 यूनिट, देन आई हैव टू टेक 1 यूनिट अगेन। तो हम क्या करेंगे, ये पहले से लाइन ड्रॉ किया हुआ है ताकि आपको समझाने में आसानी हो। चूँकि दिस इज रिवीजन क्लास तो हमें कोर्सेज को जल्दी जल्दी भगाना है, इसलिए मैं पहले से कुछ ड्रॉ करके रखा हूँ। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है। यू हैव टू रिप्रेजेंट द परपेंडिकुलर विद द हेल्प ऑफ द सेमी सर्कल। ये बनाओगे 90 बनाओगे, ये आ जाएगा। देन यू हैव टू मार्क 1 यूनिट फ्रॉम हेयर, ठीक है। इस मार्क करते ही इसका नेमिंग कर दो C, ठीक है। O A कर दिया है, C लिख दिया, B लिखना चाहिए था, चलिए C लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। देन व्हाट यू हैव टू डू, ये 2 यूनिट लिया, ये 1 यूनिट लिया, कहने का मतलब आप ये आपने 2 ले लिया, ये 1 ले लिया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, √5 हो जाएगा। दैट मीन्स यू हैव टू ज्वाइन पॉइंट O एंड पॉइंट C। तो ऐसे करके ज्वाइन कर दो, ज्वाइन हो गया। व्हाट इज द लेंथ ऑफ OC? इट इज √5 यूनिट्स, इट इज √5 यूनिट्स। सो √5 यूनिट्स के लिए अब क्या करना है, यू हैव टू टेक द नीडल ऑफ योर कंपास एट पॉइंट O एंड नीडल ऑफ पेंसिल एट पॉइंट C। ऐसे रखने का और धड़ाके से एक आर्क ऐसे बना देने का जो कि कहीं जा कर के गिरेगा बम की तरह, और ये बम बनाएगा √5, राइट। अब आप इसका नेम कर दो, लेट इट बी D। ओके, बोलेगा B कहाँ गया सर? तो B फॉर बॉय में यहाँ पर है ना, खड़ा है आपके सामने। ओके, सो लुक एट दिस, O A C एंड दिस इज D। अब आपने करना क्या है, यहाँ नहीं रुकना है, आपको हर एक चीज़ को मेंशन करना है कि व्हाट आर द पॉइंट्स, व्हाट आर द लेंथ्स दैट यू हैव टेकन। तो क्या करोगे बाबू, लिखोगे इन द कंस्ट्रक्टेड डायग्राम या फिर इन द गिवन डायग्राम। कंस्ट्रक्टेड लिखो, ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि कंस्ट्रक्ट आपने किया है। In the constructed diagram we have what do you have? Just write all the things. You have taken OA equal to 2 units, write it. You have taken AC equal to 1 unit, write it. Then after measuring it will be OC is equal to √5 units, ठीक है। OC रिप्रेजेंट करते समय ये काम भी तुम करोगे तो और अच्छा कहलाएगा, मतलब धमाका हो जाएगा, यही समझो तुम, है ना। तो OC इक्वल टू तुम ऐसे लिख सकते हो, OC इज इक्वल टू √5 यूनिट्स। ये ना लिख करके तुम ऐसे लिखो, OC इज इक्वल टू √OA² प्लस AC² इज इक्वल टू 2² प्लस 1² इज इक्वल टू √5। ओके, ये लिख दोगे ना तो एकदम टीचर तो खुश हो जाएगा, खुश हो पागल हो जाएगा वो, खुश होके, समझे, ठीक है। तो ये हो जाएगा √5। देन OC इज इक्वल टू √5 एंड हेंस दिस इंप्लाइज OD इक्वल टू √5 यूनिट्स, ठीक है। देन यू कैन राइट, फाइनली यू कैन राइट देयरफॉर OD इक्वल टू √5 यूनिट्स represented on the
नंबर लाइन। बस यहाँ पे आपकी कहानी खत्म हो गई, फटाक से आपको 3-4 नंबर मिल जाएगा बिना देरी की। दिस इज क्लियर, नोट इट डाउन। सेशन लंबा तो नहीं लग रहा होगा, ठीक है, फटाफट देखिए, वीडियो पॉज करिए और पॉज करने के बाद चीज़ों को समझते जाइए, लिखते जाइए। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव। Point number 4, every real number is represented by a unique point on the number line, and conversely every point on the number line represents a unique real नंबर। देखिए ये मैंने सेशन के बिगिनिंग में ही बोला था कि कोई भी लाइन जब तुम बनाते हो तो लाइन पर तुम कोई भी रियल नंबर लिख सकते हो। नाउ रियल नंबर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, रैशनल एंड इरैशनल। तो इरैशनल रिप्रेजेंट करना सीखा और रैशनल तो तुम बचपन से रिप्रेजेंट करते आए हो। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये -1 है, ये -2 है, ठीक है ना। इंटीजर्स रिप्रेजेंट करते आए हो तुम, ये भी रिप्रेजेंट करते आए हो। क्या रिप्रेजेंट करते आए हो? फ्रैक्शंस, ठीक है। जैसे मान लो कि ये 0 है और यहाँ पर हमने 1 लिया है, हमें 2/3 रिप्रेजेंट करना है, 2/3 रिप्रेजेंट करना है। तो 2/3 क्या होगा? ये देखो किसी चीज़ का थर्ड पार्ट है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, 0 से 1 के बीच के पार्ट को 3 बराबर भागों में बांटेंगे, ये और ये, जिसमें से ये पहला वाला नंबर होगा 1/3, ये दूसरा वाला नंबर होगा 2/3 और ये नंबर होगा 3/3, कट पीट के बना जाएगा, ठीक है। तो ये तो आप बचपन से करते आए हैं। तो ये कह क्या रहा है? पॉइंट नंबर 4 ये कहता है कि एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ यूनिक पॉइंट। कोई भी एक पॉइंट पकड़ लो कहीं भी, ये जो नंबर होगा ना, ये कोई एक ही नंबर होगा, कोई 2 नंबर नहीं हो सकता है, ठीक है। या फिर कन्वर्सली यू कैन से दैट एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स अ यूनिक रियल नंबर, ठीक है। सो कन्वर्सली बोथ आर of the topics are correct. I think this is clear to everyone. Now moving to the next topic that we have. Representation of square root of 9.3 on number line. ये HDMI लिख रहा है यहाँ पे, इसको मैं हटाऊं? हटो जी, हाँ हट गया, हट गया। थोड़ा हटने में समय लगाता है, ये बोर्ड है ना, नया है ना, नया मुर्गी नया चोर, जानते हैं ना आप लोग, ठीक है, वही चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। तो उसमें आप लोगों को दिमाग नहीं लगाना है। चलिए हम लोग समझेंगे करना क्या है बउआ। यू हैव टू रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट ऑफ √9.3 ऑन द नंबर लाइन। अब एक नया खेल शुरू हुआ कि 9.3, जो अभी तो √2, √3, √5, मतलब कि ये √2, √3, √5 में हो क्या रहा था, यहाँ आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे थे। खेला देखिए, अब खेला शुरू हो गया आपका, खेल खेला जो भी कह लो, ठीक है ना। क्या शुरू हो गया? खेल शुरू हो गया। खेल क्या हुआ कि जब हमें ये रिप्रेजेंट करना था तो हमारे पास एक खास औजार था, उस औजार का नाम था पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन अब हम √9.3 के लिए पाइथागोरस थ्योरम में नंबर कैसे पकड़ें? नहीं पकड़ा रहा है, थोड़ा कोशिश करिएगा तो पकड़ा जाएगा, लेकिन मान लीजिए नहीं पकड़ा रहा है तो उसके लिए एक आसान सा तरीका है आपके पास। एक कंस्ट्रक्शन मेथड है जिसको हम फॉलो करेंगे, सीखेंगे और समझेंगे और उसके बाद पानी की तरफ पी जाएंगे। चलिए समझते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट √9.3 ऑन द नंबर लाइन, जिसके लिए आपको ये करना है, यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन एंड देन यू विल मार्क a point A and a point B such that AB equal to 9.3 units, ठीक है। देन यू हैव टू एक्सटेंड पॉइंट B पॉइंट को एक्सटेंड करना है कहाँ तक? एक पॉइंट C तक, ठीक है, जहाँ पर BC का लेंथ 1 यूनिट होगा, ठीक है, ये आपका 1 यूनिट हो गया। देन आफ्टर यू हैव टू डू द ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC। AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने का मेथड आप जानते हैं, यू हैव टू टेक A एंड C एज सेंटर्स एंड मोर देन रेडियस मोर देन हाफ ऑफ AC। एक आर्क ऊपर, एक आर्क नीचे, एक आर्क ऊपर, एक आर्क नीचे, और इसको मिला देंगे और ये बन जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इस पॉइंट का नाम करेंगे O और फिर OA या फिर OC को रेडियस लेकर के एक सेमी सर्कल बनाएंगे। सेमी सर्कल बनेगा, सेमी सर्कल बन गया। सेमी सर्कल बनने के बाद आप क्या करेंगे? यू विल यूज पॉइंट B, ठीक है ना। B पर क्या करोगे? B पर एक 90 डिग्री के एंगल बनाओगे, ठीक है। 90 डिग्री बनाने के लिए फिर से एक सेमी सर्कल बनाओगे।
60 डिग्री, 120 डिग्री, देन दिस कट एंड दिस विल बी 90 डिग्री। ये इस सेमी सर्कल को एक पॉइंट पे टच करेगा, ठीक है, या इंटरसेक्ट भी करवा सकते हैं। इस पॉइंट का नाम करोगे D, और फिर यहाँ से तुम BD से तुम ड्रॉ करोगे एंड इट विल बी द आर्क, एंड दिस आर्क विल रिप्रेजेंट, सपोज दैट दिस पॉइंट इज E, तो यहाँ पर BE का जो लेंथ होगा, द लेंथ BE, दिस BE इज रूट ओवर 9.3। कहने का मतलब ये है कि जो BD आपने लेंथ लिया हुआ है ना, दैट इज योर रूट ओवर 9.3। चलिए फिर से समझते हैं फटाफट। एक लाइन ड्रॉ करना है, पॉइंट A से इनिशिएट करना है, यू हैव टू टेक AB इक्वल टू 9.3, जितना ड्रॉ करना है उतना ही लाइन ड्रॉ करोगे, फिर 1 सेंटीमीटर और बढ़ाओगे। कहने का मतलब टोटल लेंथ तुमको 10.3 चाहिए, लेकिन लाइन आगे बढ़ा हुआ रहना चाहिए, नहीं तो बाद में बढ़ाना पड़ेगा। क्यों बढ़ाना पड़ेगा? क्योंकि ये जो पॉइंट E है वो पॉइंट C के बाद ही आएगा, राइट तो इसलिए थोड़ा सा बढ़ा के रखेंगे। मैंने कुछ ज़्यादा ही बढ़ा रखा है, कोई दिक्कत नहीं उससे, ठीक है। देन आफ्टर यू हैव टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC, ठीक है, जो किसी पॉइंट O पर कट करेगा। फिर O को सेंटर लेना है और OA या फिर OC को रेडियस मान करके सेमी सर्कल बनाना है। सेमी सर्कल बनाने के बाद ये पॉइंट B जो पहले आपने ड्रॉ किया था उसका इस्तेमाल करना है। पॉइंट B पर एक 90 डिग्री एंगल बनाना है। 90 डिग्री एंगल बनाने के बाद ये सेमी सर्कल को एक पॉइंट पे कट करेगा या टच करेगा, ठीक है। कट करने का मतलब ऊपर बढ़ा दोगे तो कट हो जाएगा, यहीं छोड़ दोगे तो टच करेगा, ठीक है। और उसके बाद यू विल टेक BD as the radius, B as the needle of your compass, D is as the needle of pencil, और उसको घुमा देने का। तो घुमाओगे तो तुमको मिलेगा पॉइंट E, और इस तरीके से ये जो BD होगी या BE होगी वो होगी रूट ओवर 9.3 यूनिट्स, ठीक है बच्चों। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। अब आपको इसमें स्टेप्स लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है ना। सो यू विल राइट द स्टेप्स, और जैसा कि रूट 2, रूट 3, रूट 5 में हम लोगों ने काम किया था, हम लोगों ने लिखा था कि इन द गिवन फिगर दिस 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 दिस, वो सारा लिखोगे मेरे बच्चों। तो लिखोगे इन द कंस्ट्रक्टेड डायग्राम। क्या कंस्ट्रक्टेड डायग्राम था? कंस्ट्रक्टेड डायग्राम यही था कि पहले हमने लिया AB 9.3 यूनिट्स, देन हमने लिया BC इक्वल टू 1 यूनिट, देन हमने लिया, क्या लिया? हमने कुछ नहीं लिया। उसके बाद हमने BD ड्रॉ किया है ना। BD इज इक्वल टू रूट ओवर 9.3 यूनिट्स विच इज ऑल्सो इक्वल टू BE। यही आपकी स्टोरी है, ये आपका मेजरमेंट्स है। दीज आर द मेजरमेंट्स, ओके। बट व्हाट आर द स्टेप्स दैट यू हैव टू राइट? वी विल लुक एट द नेक्स्ट स्लाइड। लुक एट दिस फास्ट। The steps that you have to follow. The first step is that you have to write, draw a line segment AB of length 9.3 units, right? अगर आपने सेंटीमीटर में मेजर किया है, अगर क्वेश्चन में बोला है सेंटीमीटर तो ही लिखोगे। अगर सेंटीमीटर नहीं बोला है, अगर बोलता है रिप्रेजेंट रूट ओवर 9.3, देन यू आर नॉट गोइंग टू राइट सेंटीमीटर इवन यू हैव टेकन, ठीक है ना, तुम यूनिट्स ही लिखोगे। स्टेप नंबर 2 इज एक्सटेंड द लाइन बाय 1 यूनिट more such that BC equal to 1 यूनिट, जो हमने एक्सटेंड किया था। देन स्टेप नंबर 3 इज, यहाँ 1 हो गया है गलती से, लेकिन ये स्टेप नंबर 3 है। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ OC से B विथ BC एज रेडियस, ड्रॉ अ सेमी सर्कल। एक सेमी सर्कल हम लोगों ने बनाया था, उसको बना दिया। स्टेप नंबर 4 इज ड्रॉ अ लाइन BD परपेंडिकुलर टू AB एंड लेट इट इंटरसेक्ट द सेमी सर्कल एट पॉइंट D पे कट किया था, ओके। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज ड्रॉ एन आर्क DE सच दैट BE इज इक्वल टू BD, ठीक है ना। वही आपका हो जाएगा फाइनल स्टेप। आई थिंक दिस पार्ट इज क्लियर and this is very important concept. Next topic that we have is rationalization। समझना है आपको। The next topic that you have is rationalization। गायब हो गया अपने आप, ठीक है। with precise meaning of real numbers of the type and their combinations of some rational and irrational that we have to talk here। चलिए बात करते हैं rationalization की, कहानी शुरू करते हैं मेरे भाइयों और बहनों।
रैशनलाइजेशन की कहानी शुरू करो। तो देखो रैशनलाइजेशन किस चिड़िया का नाम है और रैशनलाइजेशन हम करते क्यों हैं ये दोनों समझेंगे। रैशनलाइजेशन का मतलब होता है ना, रैशनलाइजेशन का मतलब होता है कि अगर कोई नंबर इर्रेशनल फॉर्म में है, इर्रेशनल फॉर्म में है, तो उसे हम रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। ये स्पेशली किसके लिए बनाया गया है? ये स्पेशली सर्ड्स के लिए बनाया गया है। सर्ड्स क्या होता है? सर्ड्स आर दोज नंबर्स विच आर रिलेटेड टू स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, जो भी नंबर्स होते हैं रूट के अंदर, उसके लिए ये स्पेशली बनाया गया है। ठीक है, यू हैव वन एग्जाम्पल लाइक 1/√3। अब मैं ये कहता हूँ कि ये जो √3 दिखाई दे रहा है ना सर, इसको आप रैशनल बना दीजिए। तो उस मतलब ये है कि यू हैव टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द गिवन irrational number in numerator and denominator। उससे क्या फायदा होगा? उससे फायदा ये होगा कि देखिए क्या फायदा होगा। 1/√3 कैन बी रिटन एज √3/√3। अगर मैं इस √3 और √3 को ऐसे काट भी दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, काटने के बाद फिर 1/√3 बचेगा। और लिखे रहने दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं लिखे रहने दूं तो क्या होगा? 1/√3 इंटू √3/√3, यहाँ से क्या हो जाएगी? ये √3 हो जाएगी एंड √3 इंटू √3 विल बी 3। तो क्या हो गया यहाँ पे? बात क्या हुआ कि जो ये इर्रेशनल नंबर √3 था वो बन गया रैशनल। तो रैशनलाइजेशन में होता क्या है? वी आर कन्वर्टिंग इर्रेशनल नंबर इनटू रैशनल नंबर। तो जब भी इस तरह का नंबर हो जहां पे आपको रैशनलाइज करना हो, इट कैन बी सेड दैट रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, इट कैन बी सेड दैट रैशनलाइज द न्यूमरेटर। तो जो कहा जाए वो कर देना है। ठीक है, चलिए नोट इट डाउन। सो रैशनलाइजेशन के कुछ और टॉपिक्स, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, rationalize the denominator of following questions that we have here. Suppose that you have given 1/2√3. Okay, second question, suppose that you have 5/6√7. okay, so in both of the cases, in both of the questions, how will you solve these problems? Look at this, 1/2√3. What is the irrational number present here? The irrational present here is √3. So it is, you can just take √3 and just multiply in numerator and denominator, and then finally you will get the result as 2. √3/2 into √3 into √3 is 2 into 3. Hence the final answer is √3/6. Okay, this is your answer. In order to rationalize 5/6√7, it is also of the same kind. Here you can write 5/6√7. You can multiply and divide by √7 because √7 is present here as an irrational number. Okay, it will be 5√7 and hence it will be 6 into 7 will be 42. So 5/42√7 is your answer. Right? I think this is clear. Right. Now moving to some other questions, some other pattern of questions that we have. You have to rationalize 1/6 minus √2. अब देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना होगा। आप ये सोचिए, हमारा इंटेंशन क्या है? हमारा इंटेंशन है कि मैं डिनोमिनेटर को रैशनल बना दूं। तो डिनोमिनेटर को रैशनल बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे इसका स्क्वायर चाहिए, मुझे इसका स्क्वायर चाहिए। इसका स्क्वायर तो चाहिए ही चाहिए और इसका स्क्वायर एकदम 100% चाहिए। तो हमें क्या करना होगा? इसके स्क्वायर को क्रिएट करने के लिए वी आर टेकिंग अ नंबर विंग 6 + √2/6 + √2। सवाल उठता है कि सर आपने माइनस को प्लस क्यों कर दिया, ठीक है, या फिर कैसे कर दिया? ये दो सवाल उठते हैं। तो पहली बात हमने कर दिया,
ओके और ये हमारा मन नहीं कहता है, ये मैथमेटिक्स कहता है। मैथमेटिक्स क्या कहता है कि मुझे इसका स्क्वायर क्रिएट करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरे पास ऑलरेडी एक a माइनस बी काइंड ऑफ टर्म था, ठीक है। हमने एक टर्म और क्रिएट किया अपने मन से a प्लस बी, सो दैट आई कैन क्रिएट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब सपोज करो कि a रैशनल हो या इरैशनल, स्क्वायर करोगे तो रैशनल हो जाएगा, b रैशनल हो या इरैशनल, स्क्वायर करोगे तो रैशनल बन जाएगा। सो टू क्रिएट दिस काइंड ऑफ फॉर्मूला और टू क्रिएट दिस आइडेंटिटी वी हैव टेकन 6 प्लस रूट 2 एंड वी हैव मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब क्या करना है, 6 प्लस रूट 2 दैट यू हैव, यहाँ a माइनस बी a प्लस बी फॉर्म लगेगा, सो वी विल यूज 6 स्क्वायर माइनस रूट 2 स्क्वायर। यहाँ से तुम्हारा 6 प्लस रूट 2 सेम टू सेम हो गया एंड दिस इज 6 स्क्वायर इज 36 एंड रूट 2 स्क्वायर इज 2, हेंस द फाइनल आंसर इज 6 प्लस रूट 2 डिवाइडेड बाई 36 माइनस 2 इज 34। ठीक है, सो 36 प्लस रूट 2 बाई 34 इज योर आंसर। अगर आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 6 बाई 34 प्लस रूट 2 बाई 34। इसको और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो यू कैन डिवाइड इट 2 3 जा 6 and 2 17, so plus root 2 by 34. This is the standard form of the number. ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चंस को बना सकते हैं, राइट। चलिए और बढ़ते हैं आगे कुछ क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 5 प्लस रूट 2 बाई 5 माइनस रूट 2। ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए अब हम क्या करेंगे, देखिए हमें बोला है कि आपको रैशनलाइज क्या करना है, डिनोमिनेटर। सो डिनोमिनेटर इज 5 माइनस रूट 2, सो 5 प्लस रूट 2 डिवाइडेड बाई 5 माइनस रूट 2, वी कैन ऑल्सो राइट इट एज 5 प्लस रूट 2 बाई दिस। रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, कहने का मतलब डिनोमिनेटर को आप रैशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। सो वी विल टारगेट दिस वन एंड वी विल टेक 5 प्लस रूट 2, माइनस साइन है तो प्लस कर देंगे ताकि a प्लस बी a माइनस बी आइडेंटिटी यूज किया जा सके। अब ऊपर में जो काम हो रहा है वो मैथमेटिकली करना है। सो इट इज़ 5 प्लस रूट 2 स्क्वायर एंड दिस इज 5 स्क्वायर माइनस रूट 2 होल स्क्वायर। ठीक है, so here it will be a plus b whole square formula we can apply. So 5 square is 25, root 2 square is 4, root 2 square is 2, and then it will be 2 into 5 into root 2, and hence it is 5 square is 25 and minus 2 to the 4. I am writing again and again, it should not be 4, it is 2, right? Now after this you have to calculate and write the final answer. So 25 plus 2 is 27 plus 10 root 2 और ये 25 minus 2 हो जाएगा 23. This is your answer, right? So in order to rationalize the denominator you have to do this. अगर क्वेश्चन में ये बोलता है कि rationalize the numerator तो न्यूमरेटर को rationalize करते हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन लिखना है, so you should pause the video and note it down. Suppose that I am giving you 6 plus 5 root 7 by 10। ये एक ऐसा क्वेश्चन हमने दे दिया और मैं कहता हूँ रैशनलाइज द न्यूमरेटर। कहने का मतलब क्या है कि इस क्वेश्चन में बोलता है कि जो न्यूमरेटर में इरैशनल पार्ट दिखाई दे रहा है या इरैशनल नंबर दिखाई दे रहा है उसको आप रैशनलाइज करके रैशनल बना दीजिए। तो क्या करेंगे हम लोग इसको बनाएंगे कुछ इस तरीके से। We will take 6 plus 5 root 7 by 10. Okay, you have to write the question first. Okay, question लिखना सीखना होगा आपको। डायरेक्ट बनाने लगते हैं हम लोग, उसी में हम लोगों का मार्क्स कट जाता है। तो 6 minus 5 root 7 by 6 minus 5 root 7. ओके, देन आफ्टर हमने क्या किया, हमारा टारगेट क्या था, न्यूमरेटर। तो हमने न्यूमरेटर को सिर्फ न्यूमरेटर पे काम करना शुरू किया। ओके, अगेन इट विल बी a प्लस बी a माइनस बी आइडेंटिटी। सो 6 स्क्वायर माइनस 5 रूट 7 स्क्वायर हो जाएगा और ये नीचे मल्टीप्लाई होगा एज इट इज 6 माइनस 5 रूट 7, राइट। तो ये हो जाएगा 36 माइनस 5 5 जा 25 इंटू 7 इज 25 4 जा 100 एंड 175 बाई 10 6 जा 60 माइनस 10 5 जा 50 रूट 7। ये सॉल्व होकर के क्या आएगा,
5 minus 6 is 15 minus 6 is 9, then 6 minus 3 is 3, 139 with the negative sign, and this is 60 minus 50 root 7. This is your answer. So rationalize करने का क्रम में आप समझ गए कि the meaning of rationalization is to convert the irrational number into rational. ओके अब बात करते हैं कुछ अदर काइंड ऑफ क्वेश्चन में जहाँ पे आप कंपैरिजन करके क्वेश्चंस बनाते हैं. सपोज दैट यू हैव अ क्वेश्चन. आई एम टेकिंग अ क्वेश्चन फ्रॉम द NCERT बुक इन माई लैंग्वेज. सपोज दैट द क्वेश्चन इज गिवन इफ 1 by 2 plus root 3 is equal to a plus b root 3, find a and b. ठीक है. अब इस क्वेश्चन में ना हम कुछ समझेंगे. पहले हम लोग कुछ समझते हैं, फिर हम लोग बनाएंगे. देखिए 1 by 2 plus root 3 इक्वल टू a plus b root 3. सबसे पहले क्या है कि आप इसे सॉल्व करें, है ना. सॉल्व करिएगा जब, तो आपका जो क्वेश्चन है, वो आपका जो सॉल्यूशन है वो a plus b root 3 के फॉर्म में आएगा. जब आएगा तो फिर देखेंगे. देखिए 1 by 2 plus root 3 that you have, it is equal to a plus b root 3. Okay, rationalize it. Here you have to write rationalizing the denominator in left hand side, LHS. ठीक है. तो क्या हो जाएगा 1 by 2 plus root 3 into 2 minus root 3 by 2 minus root 3 equal to a plus b root 3. ठीक है. अब आपको करना क्या है, you have to solve it. So it will be 2 minus root 3 and it will be 2 square minus root 3 square equal to a plus b root 3. Okay, I think this is clear. Now you can write it as 2 minus root 3. It will be 4 minus 3 and it is a plus b root 3 again. Now we can write it again 2 minus root 3 by 1 which is a plus b root 3. ठीक है. या फिर इस स्टेप को स्किप भी कर सकते थे आप. 2 minus root 3 equal to a plus b root 3. अब देखिए you have to understand one thing. In this part, in the right hand side को ध्यान से समझेंगे. देखिए राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, a plus b root 3. यहाँ पर a जो है ना, a is rational and b root 3 ये जो पूरा का पूरा टर्म है ये है एक irrational नंबर. ठीक है. तो आप अब क्या करने वाले हैं, you are going to compare the rational part and the irrational part. Okay, you have to compare rational part and irrational part in both of the sides. तो देखो समझो, in this left hand side part this is the rational part, RP लिख रहा हूँ मैं, and this is the irrational part, IRP लिख रहा हूँ मैं. ठीक है. तो दिस इज द रैशनल पार्ट, दिस इज द इरैशनल पार्ट. अब इरैशनल पार्ट में कौन सा रैशनल नंबर छुपा पड़ा है वो समझेंगे. तो इरैशनल नंबर में 2 minus root 3 में कौन सा रैशनल नंबर छुपा है. सो 2 is 2 itself and root 3 can be written as 1 into root 3. No doubt, right? So we can apply these things here. तो देखिए क्या होगा, we can write it as 2 plus minus 1 into root 3 equal to a plus b root 3. तो after comparison what can you say here, comparing the like terms. देखो like terms जानते हो तुम, अगर x दिखाई देता है 2x plus 5x तो वो लाइक टर्म है. अगर 2xy minus 5xy है तो वो लाइक टर्म्स है. उसी तरीके से इसमें लाइक टर्म्स कौन कौन है, रैशनल पार्ट्स आर लाइक टर्म्स एंड इरैशनल पार्ट्स आर आल्सो द लाइक टर्म्स. ओके. तो कंपेयरिंग द लाइक टर्म्स वी विल गेट, वी हैव, व्हाट डू यू हैव, a के जगह पे क्या दिखाई दे रहा है 2 और b के जगह पे क्या दिखाई दे रहा है -1. सो द वैल्यूज ऑफ a एंड b आर 2 and -1. Understood? So by this way you can solve the values and you can find the values of a and b. Right? Okay? You can pause the videos and note it down. Again मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको so that you can write again. Okay? फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर वीडियो पॉज करिए और लिखते जाइए. This is the question. First step, second step.
देन वी आर डूइंग एवरीथिंग इन द लेफ्ट हैंड साइड पार्ट। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड काम करते करते जब ये इस फॉर्मेट में आ जाता है तो फिर हम उसे क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग द लाइक टर्म्स, और फिर a इज इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू -1 हमारी वैल्यूज़ आ जाती हैं।